تعلیم کا جو خاکہ تیار ہوا تو سب سے پہلے علامہ شبلی ہی کے قلم سے نکلا۔ اس کے بعد قدیم و جدید کی جامعیت کی پہلی باضابطہ آواز علامہ شبلی نے ہی اٹھائی، یعنی نصاب تعلیم میں قدیم اور جدید دونوں کو جمع کیا جائے، اس کی پہلی آواز سفر نامہ روم و مصر و شام میں 1892 عیسوی میں علامہ شبلی نعمانی نے زوردار انداز سے اٹھائی تھی۔ مدارس میں ترجمہ قرآن کا درس علامہ شبلی نے ہی شروع کیا، یعنی قرآن کریم سامنے ہو پھر استاد اس کا ترجمہ پڑھائے، یہ پہلے نہیں تھا، علامہ شبلی نے 90 میں اس کو شروع کیا۔ مدارس اسلامیہ میں انگریزی زبان کا نصاب علامہ شبلی نے ہی شامل کیا، پہلے مدارس میں انگریزی زبان شامل نہیں تھی۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ میں اختصاص کے جو درجے ہوتے ہیں، فراغت کے بعد، عالمیت کے بعد تکمیل اور اختصاص کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھی علامہ شبلی نے ہی شروع کی۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ میں جو انجمنیں ہوتی ہیں تحریر کے لیے، تقریر کے لیے، تو سب سے پہلے یہ اس انجمن کا قیام بھی علامہ شبلی نے علی گڑھ کالج میں قائم کیا تھا، لجنۃ الادب کے نام سے۔ تحقیق و تعلیم کے لیے مستقل ایک ادارہ ہو، اس کا خاکہ سب سے پہلے علامہ شبلی نے ہی پیش کیا، اور اس کے لیے دارالمصنفین کی پوری تیاریاں بھی علامہ شبلی نے مکمل کر لی تھیں۔ آریہ سماج سے مقابلے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے اور شدی تحریک کو دبانے کے لیے باضابطہ ایک شعبے کا قیام علامہ شبلی نے ہی کیا تھا۔ مدارس میں جو نصاب رائج ہے اس کی اصلاح کا سب سے پہلا باضابطہ کام علامہ شبلی نے ہی کیا تھا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مدارس بھوپال کا جو دستور العمل علامہ شبلی نے بنایا وہ مدارس کے اصلاح نصاب کا پہلا باضابطہ نقشہ تھا۔ اسی طرح علمی مضامین اور لیکچر کی شروعات، درس سے ہٹ کر لیکچر بھی دیے جائیں طلباء کو، اس کی شروعات بھی علامہ شبلی نے کی۔ اسی طرح ہندوستان کے جو مدارس ہیں ان کا ایک وفاق ہونا چاہیے، اس کے لیے مدارس اسلامیہ کی تنظیم نام سے ایک تحریک علامہ شبلی نے شروع کی تھی، جو علامہ شبلی سے شروع ہوئی اور علامہ شبلی پر ہی ختم ہو گئی۔ علامہ شبلی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مستشرقین کی فکری یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے قلم و قرطاس کا محاذ باضابطہ طور پر سب سے پہلے علامہ شبلی نے ہی سنبھالا۔ کلامی اولیات میں علامہ شبلی کی ایک اولیت یہ ہے کہ علامہ شبلی نے علم کلام کی دو مخلوط قسموں کو الگ الگ کیا۔ قدیم علم کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو فلاسفہ سے مقابلے کے لیے مدون کی گئی، دوسرا وہ جو فرق ضالہ کے رد کے لیے مدون کی گئی۔ یہ دونوں قسمیں علم کلام میں مخلوط ہو چکی تھیں۔ علامہ شبلی پہلے شخص ہیں جنہوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے عقلی علم کلام کے نمونے پر نئے علم کلام کو مرتب کیا۔ کلامی ادب میں شبلی کی یہ بھی اولیت ہے کہ شبلی کے قلم سے نکلا ہوا علم کلام صرف علم کلام نہ رہا، وہ کلامی ادب بن گیا۔ علم کلام پر تو سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی وغیرہ نے کتابیں لکھی تھیں، لیکن ان کی تحریروں میں محض علم کلام تھا، کلامی ادب نہیں تھا۔ کلامی ادب کی خصوصیت بھی علامہ شبلی کے حصے میں آئی۔ سیرت نگاری کے لیے علامہ شبلی نے جو اس قرآن سے دیکھا جائے، پھر احادیث صحیحہ کے ماخذ میں تلاش کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو سیرت کی کتاب میں لکھا جائے، یہ اصول سب سے پہلے علامہ شبلی نے ہی وضع کیا۔ محدث الازہر شیخ چودھری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بابت فرمایا کہ شبلی کے جیسا کوئی شخص نہیں، وہ عبقری الدہر ہیں۔ انہوں نے تاریخ کا ایک نیا طرز اپنایا کہ صحیح بخاری، قرآن اور دنیا بھر کی کتابوں سے چھانٹ چھانٹ کر لکھنا شروع کیا۔ علامہ شبلی کی اولیات اور بھی ہیں، تحقیقی اولیات، اردو ادب کے میدان میں علامہ شبلی کی اولیات، تاریخی اولیات۔ میں
مولانا صوفی خیرالدین صوفی صاحب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ میں حاجی عبدالکریم اشرف جو اشرف الکریم سوسائٹی کے صدر ہیں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ انہوں نے کل بھی ہمارے سیمینار کو عزت بخشی اور آج بھی تشریف لائے۔ اب ہمارا یہ پروگرام آخری مرحلے میں ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ 3 یا 4 شخصیات سے تاثرات کو سننا چاہیں گے۔ میں سب سے پہلے مولانا مصور حسین ندوی جو پرنسپل طہا اسکول گورا بنڈا کے ہیں، وہ مہمان خصوصی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، بہت کام کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹ میں چند جملوں میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اجلاس اور معزز حاضرین، اس وقت جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، قبل اس کے کہ میں کچھ بات عرض کروں، امیر مینائی کا ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا ایک شعر ہے، بہت مشہور ہے، امیر جمع احباب درد دل کہلے، امیر جمع احباب درد دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ معزز حاضرین، یہ جو پروگرام کل سے مستقل 3 شخصیات کے اوپر جاری ہے، صحیح بات یہ ہے اور اس کی گواہی یہاں پر جتنے لوگ ہیں سب لوگ دیں گے کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو تو جو علمی فائدہ ہوا ہے، انشاءاللہ یہ فائدہ ہماری نسلوں تک پہنچے گا، اور اسی لیے سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے مولانا محمد ہلال اعظمی صاحب، جنہوں نے جو ہے اس تاریخی کالج کے اندر اور تاریخی ہال کے اندر اس سیمینار کو منعقد کیا ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی طرح ہمارے ڈاکٹر قدوس صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جنہوں نے 2 مہینے مستقل محنت کر کے جو ہے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو اور ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آخر میں اپنی بات کہہ کر ختم کروں گا کہ جو ہے یہ پیغام ہم تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ پیغام ہماری نسلوں تک، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں جو آج کل اردو سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، میں یہ ادب گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے یہ پیغام اور یہاں سے جو رسالہ نکلتا ہے شبلی، اس کی اشاعت میں آپ حصہ لیں اور اس کا گھر میں سنیں، جو بھی ہمیشہ کام جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں صدر اجلاس کا بھی، مظفر علی شاہ صاحب اور یہاں پر دیگر مہمان جو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر مختار احمد فرید صاحب جو ہمارے شبلی انٹرنیشنل ایجوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹی بھی ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے آل انڈیا اردو ماس سوسائٹی فار پیس، اس کے صدر ہیں۔ پوری ہندوستان میں ان کی جو ہے سوشل میڈیا اور صحافی خدمات میں 1 درجن کتابوں کے زائد کے مصنف ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا چند لفظوں میں اظہار فرمائیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ یہ پروگرام سٹی کالج میں کل 2 بجے سے لے کر کے اب تک یہ جاری ہے۔ اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا آج سمبلی انٹرنیشنل کے یہ 2 روزہ عالمی کانفرنس سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔
کوئی مرحلہ ہو کوئی مارکا، قدم غازیانہ نظر عارفانہ. میں غازی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، غازی دین صاحب جو محب غازی ہیں، محب اردو ہیں، وہ بھی چند لفظوں میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہنشین کا تشریف فرما استاد الاساتذہ محترم مظفر شیمینی صاحب، مخالہ نگار، دیگر مہمان اکرام، انجام خدا کے ہاتھ ہے آغاز کر کے، انجام خدا کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دے، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دے. میں مختصراً 2-3 الفاظ میں اپنی بات رکھتا ہوں. ماشاءاللہ تمام باتیں آ چکی ہیں، شکریہ ادا ہو چکا ہے، اور مستقبل میں بھی اسی طرح کے اور بھی پروگرام منعقد کرنے کا یہاں پر لاہے عمل تیار کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ یہ 3 شخصیات کے اوپر جو سیمینار ہے، ہر ذرہ اپنی جگہ ایک آفتاب ہے. اسی طرح اور بھی پروگرامس میں مولانا آزاد ہے، جی ابوالکلام ہے، ان کے اوپر بھی بڑی ہی تحقیق ہونا چاہیے. اور اصل چیز وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا کالج ہے، یہاں پر اگر ہم پرمیشن لیتے ہیں یہاں کے پرنسپل سے تو تھوڑا اور بڑھ جانا چاہیے تھا. یہ مجھے کل سے محسوس ہوا کہ الحمدللہ انٹرمیڈیٹ گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے بچے ہیں، ان کے لیے بہت یہ معلوماتی سیشن تھا کل کا اور آج کا. یہ تھوڑا مجھے خالی لگا. میں جلال صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی ایسے پروگرام ہو تو بچوں سے یہ کھچاکھچ بہار ہے. اور دوسری اہم بات، تمام اس میں شامل ممبران اور جو بھی مہمانان ہیں، کوئی بھی پروگرام خالی نہیں ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ادارے در سخنے اس میں شبلی انٹرنیشنل ایجوکیشن ٹرسٹ کی مدد کی جائے. تب کہیں جا کے ان کے حوصلوں میں بھی جو ہے نا ہمت آئے گی، اور اس طرح سے تعلیمی پروگرام کامیاب ہوتے ہیں. ایک معمولی ہم ایک چھوٹا سا پروگرام بھی کرتے ہیں تو کافی اس کے پیچھے اخراجات آتے ہیں. بہرحال اس کے پیچھے بھی کئی لوگ لگے ہوئے ہیں، علمی خدمات اپنی روشن کیے ہوئے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. میں پھر ایک بار تمام منتظمین کا اور اس مہمانوں کا، آنے والوں کا تمام فردن پر شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں ایک شعر ہمارے ہلال آزمی صاحب کے لیے کہ کافی جستجو کر رہے ہیں، لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اور آپ نے گنگا جمنی تہذیب کا ایک لفظ استعمال کیا ہے. آپ الحمدللہ حیدرآباد میں رہتے ہوئے حیدرآبادی لوگوں کو جوڑ رہے ہیں. یہ بہت بڑی آپ کی کامیابی ہے. آپ ماشاءاللہ ایک اچھی علمی شخصیت ہے، اور یہ سب ہمارے استاد محترم کے ہی طفیل میں ہیں، جو ہمارے مظفر شیمینی صاحب جو ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا لفظ ان کے لیے محبت ہے. ہمیشہ بس ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ بس محبتیں بانٹتے جائیں، سب غیر بھی اپنے ہو جائیں. بڑا ہی پیارا کلام ہے صاحب کا الحمدللہ. میں آخر میں اس تنظیم کے لیے ایک شعر کہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے. پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، اگر اڑنے کی دھن ہوں گی تو ہوں گے بالوں پر پیدا. بہرحال اڑنے کی دھن اگر ہر آدمی پیدا کر لے تو ضرور اڑیں گے انشاءاللہ. اب میں اس کے بعد ہمارے مہمان جو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ڈاکٹر MS مذکر صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے چند لفظوں میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. معزز حضرات، میری جو لائن ہے وہ شعبہ انجینئرنگ کی ہے، تو ایک دم ہی مختلف ہے. میری تعلیم کی ہے وہ انگریزی اسکول میں ہوئی، تو اردو کو میں پڑھ سکتا ہوں، لکھ نہیں سکتا، تو میری بہت کمزوریاں ہیں. لیکن ایک چیز جو میں انجینئرنگ میں کرتا ہوں، مختصر طور پہ میں اجازت دینا چاہوں گا بتانے کے لیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ چیٹ GPT اور گوگل LM اور پرپلیکسٹی ان کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہم جب انجینئرنگ میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم آگے اس کو مشین لرننگ کے پروگرام بنا کر استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہیومن لرننگ کے ایک دم مختلف ہے. تو مشین لرننگ ایک ایسا پروگرام ہے جو جس سمت میں جاتا ہے تو ادھر ہی چلا جاتا ہے، اور جو
کہ جو بزرگان دین کی تعلیمات کتابوں میں محفوظ ہیں وہی ہمارا اوریجنل سورس ہونا ضروری ہے. اگر ہم ان ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولس پر ڈپینڈ ہو گئے, ان پہ منحصر ہو گئے, تو ہمارا راستہ جو ہے وہ کلیئر نہیں رہے گا. ہمیں بہکنے کے بہت زیادہ چانس ہو جائیں گے. تو میں زیادہ کچھ تو اس موضوع پہ نہیں کہہ پاؤں گا. شکریہ بہت بہت, مجھے موقع نہیں دے گا. میرا یہ تیسرا سفر ہے. پہلا سفر تھا جب میں طالب علم تھا, دوسرا سفر تھا جب ہماری ٹیم اسٹوڈنٹس کی ایک کمپٹیشن میں جہاں ہمیں حصہ لینے کے لیے آئی تھی, اور تیسرا جو کہ بہت ہی زیادہ یادگار ہے وہ یہ والا سفر ہے. بہت بڑے بڑے بزرگوں عالموں سے مجھے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ میں ان کے ذریعے سے جو تعلیم مجھے ملی ہے اس کو یاد رکھوں گا. شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت معلوماتی باتیں آپ نے ذکر کی. صدارتی خطاب سے پہلے میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں کنوینر ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب اور ڈاکٹر اسلام الحق صبیری صاحب, یہ دونوں حضرات بھی کچھ معافی تلافی کر لیں یہاں پہ, کچھ کمی اگر ہے تو. میں دونوں حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک کے بعد دیگر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان ہے کہ یہ 2 روزہ سیمینار اختتام پذیر ہونے والا ہے. میں موضوعات کے بارے میں میرا تاثر یہ ہوا, یہاں 3 موضوعات 3 شخصیات پر ہر شخص پر ایک سیمینار ہو سکتا تھا. گویا کہ یہ ایک سیمینار نہیں کہ 3 سیمینار ہیں. انشاءاللہ علیحدہ تینوں کتابیں 3 موضوعات پر کتابیں شائع ہوں گی. آپ نے ذکر کیا کہ طلبہ یہاں کم ہیں. کل تو 2 بجے بچے چلے آتے ہیں, اور سنکرانتی کی چھٹی کی بنا پر بچے جو ہے صحیح طور پر آ نہیں سکے. زیادہ تر یہاں بچے 90% جو بچے ہیں وہ گاؤں کے یاترا کے ہیں, تو وہ لگتا ہے ابھی تک چھٹیاں منا رہے ہیں. تو آئندہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ بچوں کی حاضری ہو. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو تمام وہ ضیافت کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا. اب تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا. جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس کی معذرت خواہ ہوں. ہماری کوشش ہوئی کہ آئندہ اس بہتر سے بہتر انتظام کیا جا سکے. اور دوسری بات, مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں استاد الاساتذہ پروفیسر محمد شامیری صاحب, مظفر شامیری صاحب جو ہے بنفس نفیس 2 دن سے تشریف فرما ہیں. ان کی سرپرستی میں یہ شبلی انٹرنیشنل کی بھی سرپرست ہیں اور اس سیمینار کی بھی سرپرست ہیں, اور دوسرے تمام بزرگ حضرات یہاں تشریف لائے. میرے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے استاد مولانا نورالعین صاحب یہاں موجود ہیں, اور ہمارے پاس قدیم رفیق بھی یہاں موجود ہے. یہ سیمینار کی برکت سے ان سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا, ان کی صحبت حاصل ہوئی. میں آپ تمام حضرات کا نہایت حقیقت سے شکر گزار ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح اور بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. یعنی شبلی انٹرنیشنل کا بھی سیمینار ہوتا, خود شعبے اردو کی طرف سے سیمینار آئندہ. میں سدھی پیٹ میں تھا. سدھی پیٹ میں نے 2 قومی سیمینار کرائے بچوں کے ادب پر, تو چونکہ میرا خاص موضوع بچوں کا ادب ہے, انشاءاللہ اس موضوع پر بھی جو ہے انشاءاللہ سیمینار ہوتا رہے گا. ہم آپ تمام حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرات جو ہے آئندہ بھی جو ہے ہمیں ہماری دعوت پر لبیک کریں, آئندہ بھی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرید صاحب صاحب جان کیا تھوڑا سا آپ کی تربیت کرنی ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے کوئی بہت, میں ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب سے
पजीर हुआ। मैं तमीज़ में नहीं जाना चाहता क्योंकि वक्त हो गया है। बहरहाल ये सारी कामयाबी अल्लाह की तरफ से ही है। अल्लाह जब चाहता है कामयाब करता है, और जब नाराज़ होता है तो नाकाम करता है। हम जो भी कुछ करते हैं अल्लाह के फज़ल करम से ही करते हैं। मौलाना हिलाल आज़मी साहब बड़ी मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत हैं, मेरे बड़े भाई हैं। उन्हीं की तरफ से कि मैं अकेला ही चला था जाने के मस्जिद, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता रहा। ये जो महफिल सजी है, या एक जिक्र किया हजरत ने कि एक सेमिनार करना चाहिए, क्योंकि मैं छोटा हूँ तो लब्बैक कहना मेरे लिए फर्ज है। मैंने फौरन कहा कि जी ज़रूर। मौलाना हिलाल आज़मी साहब उर्दू मस्कन में करना चाहते थे। मैंने कहा उर्दू मस्कन में आप क्यों करें। हमने हुसैन जलम डिग्री कॉलेज से MOU किया है, सिटी कॉलेज से MOU किया है। जो पैसे हम उन जगहों पर खर्च करेंगे क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि MOU फंक्शन में रहना ज़रूरी है, जो नए के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। फिर ये हुआ कि ये कहाँ किया जाए, हुसैनी अलम में किया जाए कि सिटी कॉलेज में किया जाए। तो मैंने कहा नहीं, ये सिटी कॉलेज में किया जाए। अभी गाज़ीउद्दीन साहब ने यह कहा कि बहुत कम तादाद थी। हमने कभी तादाद को नहीं देखा, तादाद कभी कोई माने नहीं रखती। हमेशा हम कामयाब होते हैं हौसलों से, जज्बे से। वो 4-5 नौजवान जिनके पास नौकरी नहीं थी, जिनके पास वजीफे पर जो स्कॉलरशिप मिलती थी PhD की, उस PhD के वजीफे से इतना हौसला आया था कि हम एक सोसाइटी बनाएंगे। अल्लाह का फजल करम है कि वो सोसाइटी आज इस मकाम पर पहुंची है कि 4 बैनुल-अक़वामी सेमिनार कर चुकी है। तो ये कोई माने नहीं रखता। फिर ये हुआ कि नहीं, हमारे पास जो है इदारा होना चाहिए अपना। उसके लिए कोशिश की गई। माशाअल्लाह मस्जिद का क़याम अमल में आया, इदारे का क़याम अमल में आया। अपनी आवाज़ को हम आवाम तक पहुँचाएँ, दूर दूर तक पहुँचाएँ। कुछ प्रोग्राम ऐसे हुए कि सेमिनार हाल में कोई नहीं था। हमने कहा कोई बात नहीं है, इस पैगाम को सोशल मीडिया के ज़रिए से दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ। उसी वक्त इस आवाज़ को पहुँचाने के लिए हमने परवाज़े दक्कन का एक YouTube चैनल बनाया। उसके ज़रिए से परवाज़ कराने की कोशिश की। ये एक अंजुमन है, और इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो भी इनके सत्ते में अंजुमन बन गए। मैंने परवाज़े दक्कन कायम किया, साहब ने शिबली एकेडमी कायम किया, साहब ने बच्चों के अदब पे बड़ा काम। पाकिस्तान से बाकायदा किताबों की जो है ख्वाहिश होती है, क्योंकि वहाँ बच्चों के अदब को निसाब के अंदर शामिल किया गया है। ये सिर्फ खामोश दबा इंसान है, इन्हें कोई पहचानता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे के अंदर ये पास में इनकी किताबें होती हैं। हम उसकी PDF बना करके भेजते रहते हैं। बहरहाल सिटी कॉलेज जो दारुल उलूम के नाम से था, 1948 के बाद जब यहाँ पर वो सदा बंद हो गई तिलावत कलाम पाक की, तो हमने कहा कि ये प्रोग्राम यहाँ पर करेंगे, कम से कम 2 दिन अल्लाह का जिक्र होगा। यहाँ पर जो फरिश्ते रास्ता भूल गए होंगे वो दोबारा फिर आएंगे और लब्बैक कहेंगे। यहाँ से फिर जो है अलम जलेगी, यहाँ से रोशनी की मीनार इंशाअल्लाह जो है फिर आगे बढ़ेगी। हम इसे नहीं देखते, ये खाली नहीं है। यहाँ पर फरिश्ते हैं, जो भी जगह खाली है, खाली नहीं होती, कुछ ना कुछ होता है, हम नहीं देख सकते। बहरहाल हम तंगदामनी का हमें शिकवा नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिकॉर्ड हो रही हैं, इसे हम क्लिप की शक्ल में, आज का दौर रील का है। हम अगर रील को भेजें तो बहुत तेजी के साथ दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में वो रील पहुँचती है। कल ऑनलाइन का जो सेशन था 8:30 बजे से 11 बजे रात तक, जिसमें लंदन, UK और जो है सऊदी अरबिया से लोग जुड़े हैं, बड़े ही खुश हुए। तो हमारी आवाज़ सिर्फ ये आवाज़ हैदराबाद की नहीं है, ये आवाज़ हमारी बैनुल-अक़वामी सतह की है, और इंशाअल्लाह इसे हम लेके जाएंगे। हमारे अंदर अज़्म है, हौसला है, जज्बा है। हमारे पास गवर्नमेंट की कोई माली इयानत नहीं है, लेकिन कुछ अहले खैर हज़रात हैं जो अपने तरक़े से इस काम को बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है ले लेता है। मेरा अल्लाह का फज़ल करम है कि हम आज इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारा 2 रोज़ा जो प्रोग्राम है बड़ी ही खूबी के साथ अंजाम पजीर हुआ है। बहुत ही लोग, बड़ी ही अहम शख्सियतें आई हैं। मैं समझता हूँ कि दूसरी जगह पर होता तो इतने भी लोग दिखाई नहीं देते। यूनिवर्सिटियों का जो हाल है वहाँ पर इतने लोग दिखाई नहीं देते हैं।
इंशाअल्लाह इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बेहद शुक्रिया, शुक्रिया, खुदा। मौलाना सैयद अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ख्वाजा सुराग़ ज़िंदगी में एक जुमला लिखा है कि अगर एक शख्स में कुछ फिक्र पैदा कर दी जाए, एक शख्स में जो हमारे साथ बच्चे खिदमत में लगे हुए हैं इस कॉलेज के, वो लोग शिबली का नाम ले रहे हैं, वो डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह का नाम ले रहे हैं, महाराजा सरकिशन प्रसाद का नाम ले रहे हैं। कल से आज तक तकरीबन 20-25 बच्चे नौजवान हैं जो हमारा जो है साथ भी दे रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं। तो ख्वाजा सुराग़ ज़िंदगी में अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला लिखा है कि अगर एक शख्स में कोई फिक्र पैदा कर दी जाए तो एक छोटे से मोहल्ले को नहीं, पूरी दुनिया को अपने कदमों और अपने चरणों में ला सकता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि उसके ज़हन और दिमाग के अंदर फिक्र पैदा कर दी जाए। मैं बहुत छोटा हूँ, मगर मेरे जहन में यही बात है कि इन फिक्र को हम अपने बच्चों में, अपने आप में, अपने माहौल में, अपने मुआशरे में दाखिल करने की कोशिश करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे मकाला निगारान का, सारे मुआमलीन का, अपने सारे दोस्तों का, सारे हमारे जो बिरादरान हैं उनका, ये हमारे जो बच्चे हैं इस कॉलेज के जो बच्चे, थोड़े से बच्चे हैं मगर मैं उनके चेहरों के अंदर जो बशाशत देख रहा हूँ, उनकी खिदमत जो देख रहा हूँ, खाने के टाइम, चाय पिलाने के टाइम, वहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ से लेकर आते हैं। बस यही है, अल्लाह इकबाल ने जो बात फरमाई है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर से खुदाया आरज़ू मेरी है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ये चीज़ क्या है, हम अगर इन बच्चों को कुछ भी सिखा सके, हम इनसे मोहब्बत से पेश आए, इनको बता सके, तो यकीनन जो अल्लामा शिबली है, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ने, महाराजा सरकिशन प्रसाद ने जो हम तक छोड़ा है, हम आगे तक छोड़ेंगे। मैं उन सारे बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि सब हाल में आ जाए और आप लोग मुस्तक़बिल के बीमार हैं। आप ही लोगों से ये इदारा है, आप ही लोगों से ये दुनिया है, आप ही लोगों से ये सारी चीज़ें हैं। जलाल आतिशो पर को साहब पैदा कर, अजल भी काम उठे, वो शबाब पैदा कर, तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तू खारेदार जहाँ में गुलाब पैदा कर, तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। तो ये चीज़ हमें जो है करने की ज़रूरत है। मैं अब सदाकती खिताब के लिए मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ तारीख़ शब माहिर मुनव्वर तलाश कर, मंजिल की आरज़ू है तो रहबर तलाश कर। सर, आज जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, हमारे दोस्त अहबाब डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर गौसिया, डॉक्टर बशीरुन्निसा, ये जितने भी हैं, हम सब सर से हमने बहुत कुछ सीखा है। सारी चीज़ें, इल्म, अदब, तरीक़ा, सलीक़ा, कौन बात कहाँ कैसे कही जाती है, जब ये सलीक़ा तो हर बात सुनी जाती है। पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये कि सलीक़े से तराशा जाए। तो मैं बड़ी अदब और एहतराम के साथ अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शाबिरी साहब और हम लोग मौलवियों की ज़बान में दामद बरकातहू, ज़ीद मददहू, मुतज़िल्लुल्लाही, ये सब ऐसे अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला आपके उम्र और इक़बाल में इजाफा फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ताबीर सलामत रखे। साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर मौलवी अब्दुल्ला उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल, साबिक़ सदर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने
अपनी सदारती खिताब से हम सबको मुस्तफीद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान इकरामी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हिलाल आज़मी, उनकी पूरी टीम, यहाँ के शोबे उर्दू के असरार साहब, मैं सबकी खिदमत में हाजिर करने के तारीफ के इतने पहलू हैं, मैं खुद हैरान हूँ किस किस पहलू का मैं जिक्र करूँ। बस यही दुआ करूँगा कि आप लोग यूँ ही तरक्की करते रहें और हमारी कभी कमी पूरी ना होने दें, ये कमी में कमी महसूस होने ना दें। आप ये सिलसिला जारी रखें और नई नस्ल को आप वाकिफ कराते रहें कि हमारे असलाफ़े बरगज़ीदा ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं और उसके अंदर कितनी दानिशवराना बातें छुपी हुई हैं और किस तरह आज भी हमारे लिए वो मशाल राह साबित हो सकते हैं जिनसे आज हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। मैं इस बात हमारे मुद्दकी साहब की इस बात को मैं दोहराना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर हम मसलबी जहानत ही पर मुनहसर रहेंगे, उसी के इंतजार पे बैठेंगे तो हम भटक जाएंगे। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मैं ऐसे ही 2-4 दिन पहले कुछ टाइप कर रहा था, उसमें गलती से एक लफ्ज़ टाइप हो गया रूट। मैंने कुछ और टाइप किया लेकिन उसने रूट ले लिया उसको। उसके बाद उसने मेरे सवाल का जवाब छोड़कर उसने जिस चीज़ को मैंने पूछा था उसके तमाम रूट बता दिए। मैं एक मशीन का मामला है, एक बटन इस तरह रुक गया दुनिया बना, एक बटन इस तरह रुक गया तो आधी दुनिया ख़त्म। तो हम इस तरह की ज़िंदगी में जी रहे हैं। मैंने एक नज़्म लिखी थी, याद आ गई, मैं कह देता हूँ कि हम जिस जन्नत में रह रहे हैं, हम जिस जन्नत में रह रहे हैं उसके ज़र्रे ज़र्रे पर तीसरी आग निकल आई है। हम जिस जन्नत में रह रहे हैं उस ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे पर तीसरी आग निकल आई है। हम कितने ही लिबास क्यों ना पहन ले, हम कितने ही लिबास क्यों ना पहन ले, वो हमें उड़िया देख लेती है। हम कितने ही लिबास क्यों ना पहन ले, वो हमें उड़िया देख लेती है। इस वक्त इंसान की ये हालत है डिजिटल की वजह से और इस मसलबी जहानत की वजह से। मैं आपकी बात को बहुत पसंद करता हूँ। हमें चाहिए कि हमारी नई नस्ल को हाथ की किताब देकर समझाएं कि हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा है। तो ये इस सेमिनार का हासिल समझता हूँ मैं कि आप अच्छा, मैं अपनी तरफ से हिलाल साहब मैं चाहता हूँ कि एक रेजोल्यूशन आप हमारे इस सेमिनार के जरिए से पेश करें एजुकेशन मिनिस्ट्री में कि कॉलेज की सतह पर डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब को खास तौर पर निसाब में शामिल करें और उनका तारुफ पेश करें। ये मेरी तरफ से मैं रेजोल्यूशन आप पास कीजिए, ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम हमीदुल्लाह साहब को समझे। वजह इसलिए है कि तहकीक मेरा जुमला है, नोट कर लीजिए कि तहकीक हमारे लिए इस ज़माने में वो ढाल है जो 1000 तलवारों के बाद को सह सकती है। तहकीक अब कोई जज्बाती बयान, कोई जज्बाती मुजाहरे, कोई सस्ती जज्बाती से काम निकलने वाला हरगिज़ नहीं है। अब अगर हम जी सकते हैं या तो कलम से जी सकते हैं या तहकीक से जी सकते हैं। और ये जो तीनों शख्सियात आपने बताई, इसमें खास तौर पर आपने इस्लाम के 2 मुफक्किरीन, उन्होंने ये हमारे इस पूरे बस्ते को जिंदा किया अपने कलम के जरिए से। यही पैगाम पहुँचना चाहिए। तो मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ हिलाल आज़मी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्हें एक निहायत ही मुफीद काम एक सेमिनार की सूरत में पेश किया है। 2-4 ज़ाती बयान हैं और वो ये है कि बहुत दिनों के बाद मैंने हिलाल आज़मी को सुना, मैंने डॉक्टर सुमैया तनकीन को सुना, और मैंने गौसिया बानी को सुना, बख्शी साहब को सुना। बहुत दिनों के बाद, पता नहीं बहुत वफा हो गया है शायद, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अब वो बहुत खुद एतमादी के साथ बोल रही है और
वैसी अंदाज से लोग यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं तो सच कहता हूँ मुझे रश्क हो रहा है, काश मैं ऐसा बोल सकता। बहुत मुबारकबाद आप सबको। एक और चीज़ यह है कि मखाला निगारों की खिदमत में मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं उनके मखालात पर मुहाकमा पेश करूँ, क्योंकि मखाले थोड़े थोड़े ही पढ़े गए हैं। ज़ाहिर पूरे मखाले के मैंने नहीं सुने, मैं मुहाकमा पेश नहीं करूँगा। अलबत्ता मैं 2-4 बातें अर्ज कर देता हूँ। उन बातों की रोशनी में मखाला निगार आप खुद अपना तजिया कर लीजिए। 2-4 बातें ही बस हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए मैंने ऐसा सोचा है कि मखाले 3 तरह के होते हैं। एक मखाला होता है मालूमाती, जिसमें आप मालूमात पेश करते हैं कि फला साहब कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की और कहाँ क्या किताबें लिखी, क्या किया, क्या हुआ। ये ज़्यादातर मालूमाती मखाले होते हैं। पूरा मखाला भी मालूमाती है या जुज़वी भी है, यानी कि एक मखाला जुज़वी तौर पर मालूमाती हो गया। दूसरी जो नौइयत का मखाले होते हैं वो तज्जियाती है कि आपने एक दानिश्वर को लिया और उसके तमाम मखालों का तज्जिया पेश किया, यह हो सकता है। तो 2 तरह के मखाले हैं। एक मखाला वो है जिसमें मालूमाती मखाला कह सकते हैं, एक वो है जिसे हम तज्जियाती मखाला कह सकते हैं। लेकिन एक मखाला वो भी है जिसका नाम मैंने मुनफरिद लिखा है। मेरे पास अब कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं मिला फौरी तौर पे, तो मैंने इस वक्त उसका नाम मुनफरिद मखाला लिखा है। मुनफरिद मेरी नज़र में यह है कि हम जिस दानिश्वर को पढ़ रहे हैं या जिस अदीब को पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं, उसका कोई एक अनदेखा पहलू जिसको अब तक दुनिया ने देखा नहीं, एक कोई अनदेखा पहलू तलाश करने, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा एक पहलू ले लें और उस पहलू को आप ज़्यादा खोल कर बयान कर दें। मैं इसको समझता हूँ मुनफरिद पहलू। मेरे उस्ताद मोहतरम थे प्रोफेसर सुलेमान जावेद, वो हैदराबाद ही के थे मगर तिरुपति में हमें पढ़ाते थे। तो उनका एक कौल मुझे हमेशा याद रहता है और वो ये कहते थे कि देखो मौजू बड़ा अगर है आपका और उसको आप समेट रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। यानी बहुत फैला हुआ मौजू है, आप उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। होना ये चाहिए कि आपका मौजू छोटा हो और उसको फैलाने की कोशिश करें। यह हमारे असातिज़ा ने हमको सिखाया है। यानी उसकी वजह यह है कि एक समंदर को आपने कूजे में बंद किया, वो बलागत है, तहरीक नहीं बोलते। यानी एक बड़ा समंदर है, उसको आपने कूजे में बंद कर दिया, ये बलागत है और इसकी अपनी अलग शान है। लेकिन रिसर्च वो है कि आपने अपने इस छोटे से लोटे को तोड़ दिया और उसको समंदर बना दिया। ये रिसर्च है, ये मखाला नहीं है। तो मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे मखालों को देखूँ, यानी कि मुनफरिद अंदाज के मखालों को देखूँ जहाँ मालूमात ना हो, जहाँ तज्जिया भी ना हो, बल्कि सिर्फ कोई एक ऐसा पहलू हो जिसको हमने अभी तक देखा ना हो और वो पहलू हमारे आंखों के सामने आ जाए। अगर किसी सेमिनार में एक 2-4 पहलू में किसी शख्सियत के अगर बाहर आ जाए तो वो बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। मैं फिर एक बार हमारे उस्ताद मोहतरम सुलेमान जावेद साहब को मैं फिर याद करूँगा। वो हमसे कहते थे रिसर्च कराने वक्त पर, हमसे कहते थे कि देखो कोशिश ये करो, वो हाथ इस तरह रखकर कहते थे कि कोशिश ये करो कि आपका जो मखाला है वो आपके हाथ में रखा हुआ है तो वो अदब में कुछ इजाफा कर रहा है। इस तरह हाथ उठा के कहते थे कुछ इजाफा कर रहा है, दोहराया ना गया है। तो बहरहाल ये बातें मुझे आपसे कहनी थी और इस मालूमाती, तज्जियाती या मुनफरिद जो जिस तरह का मखाला है आप खुद अपने मखाले के बारे में तज्जिया कर लीजिए। आखिरी बात मैं हिलाल आज़मी साहब से और उनकी पूरी टीम से कहना चाहता हूँ और वो ये है कि आपने जो
सेमिनार किया, इसकी खूबियाँ बहुत हैं। अगर एक आप खामी कभी कहीं रह भी गई है तो उसको ऐसा ही समझिए जैसे किसी बहुत अच्छे शहर में एक छोटी सी खामी रह गई है, तो उसकी परवाह मत कीजिए। और एक और बात यह है कि मैं मुंतज़िर रहूँगा एक इसी तरह के और किसी कारनामे का। बेहद शुक्रिया। खुदा और मोहब्बत ही मोहब्बत है। सर कहते हैं कि मोहब्बत ही करना चाहिए, और मोहब्बत करने वाला हमारे साथ है तो यकीनन हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि आज मैंने सर से ये गुजारिश की थी कि आज तरन्नुम में कुछ आप जो है नातिया अशार हमारे सामने पेश कर दें। उसके बाद सनद का जो सेशन है, मोमेंटो और सनद मकाला निगार को सर के हाथों से और मेहमान मुअज़्ज़म के हाथों से दिया जाएगा। मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदी, मौलाना मुस्तफ़ा हुसैन नदवी, इन दोनों हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि शह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ और मौलाना नूरुल ऐन साहब हम सब के मैं जितने भी जो हमारे कारकुन हैं, मैं सारे नौजवानों का, सारे बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र कुमार रमजान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे जो है जो भी मुआमिलीन हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर के जो है नाम से शिवली ने भी यही बात कही थी, हम खात्मा भी खैर नाम से हम करना चाहते हैं। मैं सर से गुजारिश करता हूँ कि सरकार मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अक़ीदत पेश करवाएं। नहीं उसमें मगर रोज़े पे जाकर उरूजे शायरी के ज़ीने चढ़कर आ रहा हूँ। सुनो अहले ज़बान, अहले हुनर, अहले कमाल। सुनो अहले ज़बान, अहले हुनर, अहले कमाल। मैं दरबारे नबी में नात पढ़कर आ रहा हूँ। सुनो अहले ज़बान, अहले हुनर, अहले कमाल। मैं दरबारे नबी में नात पढ़कर आ रहा हूँ। हुनर कुछ भी नहीं मुझमें मगर रोज़े पे जाकर उरूजे शायरी के ज़ीने चढ़कर आ रहा हूँ। नात का मतलब समाप्त फरमाइए। हम मदीने से ये जीने की अदा लाए हैं। हम मदीने से ये जीने की अदा लाए हैं।
शेर। 4 दिन मस्जिद नबवी में इबादत कर ली, हो 4 दिन मस्जिद नबवी में इबादत कर ली, अपने हमराह वो, अपने हमराह वो नूरानी फज़ाला अपने हमराह वो नूरानी फज़ाला तुम भी आ जाओ मुज़फ़्फ़र के है राहत इसमें, तुम भी आ जाओ मुज़फ़्फ़र के है राहत इसमें, उनसे हम मांग के, उनसे हम मांग के रहमत के रिदा लाए, उनसे हम मांग के रहमत के रिदा लाए, दिल में इखलास तो आँखों में हया लाए। इकबाल में इजाफा फरमाए। अब जो आगे की कार्रवाई है वो डॉक्टर गौसिया बानो एक मकाला निगार को स्टेज पर बुलाएंगे, उनको सर्टिफिकेट और उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश किया जाएगा। और सभी जब मुकम्मल तादाद हो जाएगी, इस वक्त जो मौजूद है तकरीबन 20 या 24 या 25 है, बाकी लोगों को इंशाअल्लाह जब पहुँचा दिया जाएगा। तो मैं डॉक्टर गौसिया बानो से गुजारिश करता हूँ और शहनशीन पर जो हजरात हैं वो सभी लोग थोड़ा आगे आ जाए यहाँ पे, और अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। पहले डॉक्टर नाज़िम अली साहब से भी मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ शुक्रिया। मौलाना मुस्तफा हुसैन अली साहब से दरख्वास्त करती हूँ, नाज़िम साहब, डॉक्टर नाज़िम साहब को सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया जाएगा। डॉक्टर नाज़िम साहब थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक मतलब एक साथ ले लेंगे। जी शुक्रिया। मौलाना मुस्तफा हुसैन अली साहब मौलाना नूरुल हाँ मौलाना नूरुल साहब, सूफी सरवी साहब, फिर अरबा की खिदमत है वो सर्टिफिकेट में है और माशाल्लाह बहुत नेक बनाए साहब के मौलाना सूफी साहब सर्टिफिकेट और मोमेंट को दिया जाता है। एक नाम और है अशरफ अब्दुल करीम साहब, अब्दुल करीम साहब इसमें तेरे तालीम है माशाल्लाह और भी बहुत बड़ी ये बड़े खिदमतगार हैं और बच्चियों को तालीम से मुस्तफीद कर रहे हैं। आपकी आवाज़ हो जाती है।
वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर हुसैन निजामी साहब, और सर्टिफिकेट और मोमेंट को अदा किया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से। बहुत अच्छा इन्होंने बताया। और मैं तमाम डिग्री वाले बाबा आप भी जामे में एग्जाम से किया है, डिग्री जामे में लेना चाहे। अब हमारे मौजूद मकाला निगारान को दावत देते हैं हम। मोहम्मद अमजद फासी साहब, डॉक्टर इरफान अली साहिबा ने ऑनलाइन अपना मकाला प्रेजेंट किया था कल के सेशन में। उनका अपनी फासी साहब दे रहे हैं। और इसके बाद जावेद अख्तर साहब तकलीफ लाए। माशाअल्लाह और इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, काफी जमाने के लिए बहुत मुबारक। डॉक्टर फैजिका बेगम से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए। डॉक्टर फैजिका बेगम साहब, डॉक्टर सैयद हमीद हाथी साहब से भी मुतल्लिक है कि वो शहरी पर तशरीफ लाए। हाथी साहब मौजूद है। बहुत मुबारक हो डॉक्टर सैयद हमीद कादरी साहब। ये हमारे ट्रस्टी भी हैं, हमारे सदाई डॉक्टर नजमा सुल्ताना साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉलेज बंद है। मारूफ सदरकार सादिया फातिमा ने मकाला यहाँ पर सबमिट किया है और मारूफ साहब उनका मोमेंटो और सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। आज़ाद साहब को मुतल्लिक हूँ कि वो चैरिटी पर तशरीफ लाए। ये सारी आप लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए, इंशाअल्लाह ये अच्छा रहा। शादाब साहब तैयार जी आप मौजूद है। मोहम्मद नसरुल नसरुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि चैन पर आए। मोहम्मद नसरुल्लाह साहब अपना मोमेंटो और फरजाना बेगम, रहनुनिसा नसीब साहब यहाँ आ जाए। फरजाना बेगम साहिबा अपना मोमेंटो और सर्टिफिकेट। बहुत शुक्रिया आपकी तालियों की गूंज का। आप इतना अप्लाई कर रहे हैं। डॉक्टर रजी अहमद गिलानी साहब, अलमास फातिमा साहबा, अलमास फातिमा रिसर्च स्कॉलर मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर महमूदा बेगम साहिबा, डॉक्टर महमूदा बेगम साहिबा नहीं आई। ठीक है। डॉक्टर सुमैया तंजीम साहिबा, डॉक्टर जाहिद अली हरियाणवी साहब, जाहिद अली हरियाणवी साहब, वली जाहिद हरियाणवी साहब। नाम सुना है में इलाका आदमी आएगा। नईमुन्निसा बेगम, नईमा बेगम, नईमा बेगम शुक्रिया।
डॉक्टर बशीर सर अपना मेन्यू और सिफारिश कीजिए। डॉक्टर फौजिया बानो जी, डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब आप भी शामिल हैं, मकाला निगार में। डॉक्टर अहमद अली साहब, नाम नहीं बोले वहाँ लिखा हुआ आइए। और मैं डॉक्टर एस मुदक्किर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि बाद में एक तारीखी फोटो ग्रुप फोटो ले लो बेटा, आ जाओ इधर, आ जाओ, ले लो फोटो ले लो भाई, सब फोटो एक जगह भेज दो। बच्चों को अभी सर बोल रहे हैं कि उनको भी सर्टिफिकेट दे दी जाएगी अभी, क्योंकि आपकी दिमाग में 2 दिन से आप इस तरह से भागते थे। बहरहाल अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और इस सिलेक्ट करने में आपको कामयाबी अता मोहम्मद मोहम्मद अमान, मोहम्मद मुबीन अहमद, नहीं डॉक्टर साहब राइट, ओके सर प्लीज। सर अरमान, अलग से देंगे सरदार हमदा, ओके राइट बॉस बॉयस। मोमेंटों के साथ जुगनू साहब जो है कल भी रहे, आज के दिन किसी का हक नहीं। ओके बॉय, ओके राइट, थैंक यू थैंक यू। मुबीन अहमद, बहुत मुबारक। ओके बॉय।
मोहम्मद अरशद नवाज, सर की ख्वाहिश के मुताबिक आप खोल लीजिए, मुंह खोल लीजिए, हो गया क्या? मोहम्मद अरशद नवाज, मोहसिन खान था बड़ा किरदार अदा किया। सारी खबरें हमारे मौसम भाई के तवज्जुह से शाया होती है माशाअल्लाह। इसके बाद बहुत मेहनत की आप लोगों ने, जज़ाकल्लाह। अल्लाह मुबारक हो। और दूसरे साहबजादे सहमत अगर कोई रह गए हैं तो तशरीफ लाए। दूसरे हमारे ये सीधा था मैडम आप ये बच्चे लिखे जाए यहाँ के टोले के सर एक्सक्यूज मी सर,